Hello students, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit from Surat, Gujarat. Today we are going to see chapter number 11, that is Indian Judiciary. This is the third main organ of our government. आप लोगों ने already chapter 10 में organs of government में मैंने आप लोगों को बताया था कि there are three organs of government. One is legislature, second is executive and third is judiciary. हम लोगों ने लेजिस्लेचर के बारे में इन डिटेल पढ़ा इन चैप्टर 10, एग्जीक्यूटिव के बारे में भी इन डिटेल पढ़ा, बट इंडियन जुडिशरी जो था वो एक छोटा सा टॉपिक था चैप्टर 10 में. सो नाउ वी विल बी स्टडिंग दिस organ of government in detail. So let us begin बच्चों. We have studied in detail about two organs of government, the legislative and the executive. Now we shall study in detail about the third organ of the government, the judiciary, which is independent, statutory and impartial organ of the government. So this is the main organ of government which is independent of both legislative as well as executive, and it is the most impartial organ of the government. Now the Constitution of India provides for a systematic, organized, and uniform judicial system throughout India. The Indian judiciary system is a form of pyramid hierarchy. Pyramid hierarchy means एक pyramid की तरह है जिसमें at top level we have Supreme Court. यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है. At next level there is High Court, which is in almost every state. Then comes district court or taluka court, and last it is trial court and special courts. ठीक है? So we have established a uniform judiciary, and in at the top most level there is a Supreme Court, which is the apex court. Means उसका decision जो है वो final माना जाता है. At the middle level, there are high courts, and under their jurisdictions are the district courts at district level, and at taluka level, there are local and special courts. Apart from this, there are trial courts, tribunals, which are established to cater the various subjects. So you need to remember कि सबसे पहले ऊपर के लेवल में आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे वाले लेवल पे आता है हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट, एंड उसके नीचे ट्रायल कोर्ट एंड सम अदर स्पेशल कोर्ट्स. ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एकदम फाइनल माना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही जगह पे है, एंड दैट इज इन दिल्ली. ठीक है? विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. एंड हाई कोर्ट्स जो है, ठीक है, वो जनरली हर एक स्टेट का एक पर्सनल हाई कोर्ट है, लेकिन जो अपने ईस्ट इंडिया है जहां पे सेवन सिस्टर्स है, वहां पे एक कॉमन ही हाई कोर्ट है, और वो आसाम में है. वो हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है? नाउ let us study about the importance of judiciary. So importance क्या है? तो एक neutral and impartial judiciary is essential in the federal system for the protection and preservation of the rights of Indian citizens, and to solve any incongruity between the center and state, or between one state to other state regarding the division of workload. So judiciary का काम क्या है? न्याय दिलाना. ठीक है? हर एक इंडियन के जो फंडामेंटल राइट्स है, वो हर एक इंडियन पीपल को वो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, उसको जो न्याय दिलाने का काम है वो किसका है? वो काम है जुडिशरी का. एंड टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, या वन स्टेट गवर्नमेंट टू अनदर स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है? The judiciary is an important organ as to interpret constitutionality of any provision of any law, so that supremacy of the constitution prevails. In order that the legislature or executive do not violate any of the constitutional limitations, we require in our country independent,
firm, impartial and fearless judiciary which is the foundation of democracy. So ये एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड लॉ गिवन है, जिसमें अगर कोई भी चीटिंग करता है या किसी के भी फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज, इवन सिटीजन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं अच्छे से फॉलो करते हैं या गवर्नमेंट उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं देते हैं, तो वी रिक्वायर वन जुडिशरी, ठीक है, जो कि एकदम अपने डिसीजन में फॉर्म हो। दूसरी मेन चीज इम्पार्शियल हो, किसी की तरफ बायस्ड होके डिसीजन नहीं ले सकती है। एंड तीसरी एकदम फियरलेसली वो अगर डिसीजन करे तो दैट विल बी द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी द जुडिशियरी प्रोसेस देयर इज नो फ्लॉ or delay and citizen gets quick, cheap and equal justice, or it is the ड्यूटी ऑफ जुडिशरी एज वेल कि सबको न्याय दिया जाए। और किस तरह से न्याय दिया जाए, एक तो फटाफट से और सस्ते तरीके से, और सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। नेक्स्ट, in the presence of alert legislative and executive, the judiciary would always remain active, but many a times due to administrative inactiveness and irresponsibility of executive and an authoritativeness of the legislature, impartial, cognizant, independent and fearless judiciary has some judicial inactiveness। और ये पैराग्राफ ऐसा कहना चाहता है कि किसी का ज्यादा दबाव होने की वजह से, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो या कोई लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट के दबाव में आने से अगर जुडिशियरी अपना इनएक्टिवनेस दिखाती है तो वो पूरे सिस्टम को इनएक्टिव, इम्पार्शियल, कॉग्निजेंट, इंडिपेंडेंट, फियरलेस बना सकती है। लेकिन वो जुडिशियल की इनएक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए। जुडिशियरी शुड बी वेरी एक्टिव, वेरी फर्म, वेरी impartial and very much fearless. Now let us begin with the main court, or you can say apex court, or you can say supreme court. तो supreme court is the apex of Indian judiciary. Apex का मतलब होता है top of the Indian judiciary. As per Constitution of India, इट इज द टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को एट द टॉप माना गया है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। all the civil and criminal courts of India have to work under the jurisdiction of the Supreme Court. Now word jurisdiction means जो न्याय का काम करता है, ठीक है। जितने भी कोर्ट है वो सब सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में होते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज कंट्रोल ओवर हाई कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट हैव कंट्रोल ओवर अदर डिफरेंट कोर्ट्स, ठीक है। ये खास ध्यान रखना। तो jurisdiction means judgment. The Supreme Court consists of one Chief Justice. One Chief Justice means main judge. Supreme Court का जो जज होता है, ठीक है, उसको one Chief Justice and 28 additional judges. तो सुप्रीम कोर्ट अगर आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखे होंगे तो देर आर ऑल टुगेदर, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो एक मेन जज होते हैं और उसके साथ देर आर 28 अदर एडिशनल जजेस आर ऑल्सो देयर। The Chief Justice of Supreme Court is appointed by the President of India. The Judge of Supreme Court is appointed by President of India. The number of judges in Supreme Court is decided by the Parliament. ठीक है, जो अपनी legislature है, Parliament. But if the President feels that the workload of Supreme Court is increased, then President can appoint additional ad hoc judges. Ad hoc judges का मतलब क्या होता है? Temporary judges to the Supreme Court as per the provision of Constitution. ठीक है, तो President वैसे generally जो 28 judges है वो Parliament में से decide किए जाते हैं, लेकिन अगर President को ऐसा feel हुआ कि workload बहुत ज़्यादा है Supreme Court के ऊपर, तो वो एडिशनल एडहॉक जजेस मतलब कि एक्स्ट्रा जजेस, टेम्पररी जजेस सुप्रीम कोर्ट में बिठा सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। सीनियोरिटी यहाँ पे इसका मतलब होता है ऑन देयर वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आप लोगों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है।
except for the chief justice, मतलब main judge of Supreme Court, all the other judges are appointed in consultation. Consultation means सलाह विचारना करने के बाद with chief justice as well as other senior judges. ठीक है, बाकी के जो 28 जजेस की पैनल होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो डिसाइड की जाती है बाय प्रेसिडेंट एंड विद कंसल्टेशन ऑफ मेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड अदर सीनियर जजेस. नाउ आपको अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड? Qualifications: a person who is appointed as the judge of Supreme Court should be first a citizen of India, मतलब इंडिया का इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, पान कार्ड एंड आपका व्हाट वी से एज योर बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ इंडियन सिटीजन होना चाहिए. Then second, should have provided a service of at least 5 years as a judge in any of the High Court of India. Second point, वो क्या होना चाहिए? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनना है तो किसी भी स्टेट के 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज हाई कोर्ट का मेन जज. Then third, should या तो फिर should have an experience of at least 10 years as an advocate in any of the High Court of India. तो lawyer, as a lawyer या advocate 10 years हाई कोर्ट में काम होने चाहिए, किए हुए होने चाहिए. And should be a distinguished judge. Distinguished judge मतलब अलग से दिख जाना चाहिए, या तो फिर फेमस ज्यूरिस्ट होना चाहिए एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ही इज द फेमस ज्यूरिस्ट या एकदम डिस्टिंग्विश्ड है तो उनको एज अ जज ले लेना चाहिए. एंड लास्ट क्वालिफिकेशन, आपकी एज जो है वो 65 से ज्यादा नहीं चाहिए. should not be more than 65 years of age. Moving ahead, next, thus the retirement age is 65 years for the judges of Supreme Court. ये खास ध्यान रखना, ठीक है. तो रिटायरमेंट एज क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज की? इट इज 65 ईयर्स. नाउ टाइम पीरियड, मतलब कितने साल तक आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो. फर्स्ट, रिटायरमेंट एज इज 65 ईयर्स फॉर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. However, the change in the age of retirement can be made by parliament through framing a law. और वो लॉ फ्रेम करके हम लोग चेंज कर सकते हैं. और लॉ कैसे चेंज होगा? हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में देखा है, हाउ कैन अ बिल बिकम एन एक्ट, ठीक है. तो सबसे पहले लोअर हाउस, अपर हाउस, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर, देन a new law can be framed. They cannot carry out practice of law in any Indian courts, but they can provide their service in committees appointed to investigate into among uncommon situations or even events. इसका मतलब क्या है? अगर बाई चांस वो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. हाँ, अगर ऐसे कोई केसेस है जहां पे कुछ इन्वेस्टिगेट करना है या उन मतलब बाकी के जजेस को पता नहीं चल रहा है, एट दैट टाइम ही कैन जस्ट गिव सम व्हाट वी से सजेशंस, बट ऐसा नहीं है कि वो उनको वापस प्रैक्टिस में ले लिया जाए. देन if incapable to carry out their duties before the time of retirement, then under such circumstances they can resign willingly from their post by tendering written resignation to the president. अब आप 65 years तक नहीं खींच पा रहे हो, आपकी एज हो गई है, 60 years पे ज्यादा बीमार होने लगे हो, ठीक है, और आप ज्यादा, आपको पता है कि अब आपकी वर्किंग कैपेसिटी अब इतनी नहीं रही है, तो यू कैन रिटायर ऑन योर ओन बाय राइटिंग अ रिटन रेजिग्नेशन लेटर to the president. Then, but the judges can be removed from their post and power if they are found to be guilty of incapability, misconduct or inefficiency. और गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट उनको अपनी पोस्ट से 65 से पहले निकाल सकते हैं कि अगर उन्होंने उनके अंदर कुछ गिल्टी हो, पकड़ा गई हो कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो किसी के तरफ बायस्ड है या वो फियरलेस नहीं है, तो उनको निकाल दिया जाता है. या मिसकंडक्ट मतलब किसी के प्रति कहीं से पैसे लेके उन्होंने काम किया हो तो वहां से उनको निकाल सकते हैं.
This removal is in accordance with the provisions of the Constitution and carried out through impeachment motion in Parliament. हम लोगों ने already impeachment motion भी देखा है, तो impeachment से ही जज को भी निकाला जा सकता है. The procedure for it is as follows. Every house of parliament has to submit a memorandum. Memorandum means written document में लिखना होना चाहिए, having majority support to the president of the total number of members and at least 2/3 number of members present in the respective sessions. तो अगर सुप्रीम कोर्ट को के जज को अपनी पोजीशन से निकालना है तो एक इम्पीचमेंट मोशन होना चाहिए, देन एवरी हाउस की रिटर्न मेमोरेंडम होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 2/3 members should be present in that session. Based on the presentation by the order of president, the judge can be removed from his post. The parliament monitors the presentation of the memorandum regarding the misbehavior of the judge and conducting of the investigation as well as conducting of the proof for the same. और ऐसे ही नहीं, आप लोगों ने लिख तो दिया ठीक है, लेकिन उनके बाद उसका एक मेमोरेंडम का प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए, दूसरा उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर प्रूफ मिले then and then you can remove from his post. The concerned judge is given opportunity to present his narration in his self defense in the parliament. और फिर जो जज को निकालने वाले हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अबाउट द मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी और इनकेपेबिलिटी फॉर हिज सेल्फ डिफेंस, कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, और फिर निकाल दिया जाता है. The President of India administers the oath of secrecy and loyalty towards the Constitution to the judges who appointed to the Supreme Court. ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के सामने ये भी एक ओथ लेनी पड़ती है, जैसे बाकी के लोग ओथ लेते हैं, गवर्नर और यू कैन से सीएम पीएम, वैसे ही इनको भी एक ओथ लेनी पड़ती है. बिफोर टेकिंग द चार्ज ऑफ देयर पोस्ट द जजेस आर रिक्वायर्ड टू टेक ओथ इन ओरल as well as sign the pledge. तो साइन रिटन डॉक्यूमेंट पे भी साइन करनी चाहिए और वो वर्बली सबके सामने भी बोलना जरूरी है. ओके बच्चों, मूविंग अहेड, द पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. पावर क्या क्या है और उनके जजमेंट क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के, वो अब देखेंगे. तो सबसे पहले उनके पास 3 ऑप्शन है. ठीक है, ये खास ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ऑप्शन होते हैं. वेरी फर्स्ट ऑप्शन उनको बोला जाता है, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, ओरिजिनल उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है उनको माना जाता है. सेकंड जो होता है वो है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि यहीं से हाई कोर्ट से अपील हुई है कि वांट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट और फिर ज्यूरिसडिक्शन दी गई हो, उसको बोलते हैं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन. एंड थर्ड इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ज्यूरिसडिक्शन क्या है वो मैं बताता हूं. द टेरिटरी और अ स्फीयर ऑफ एक्टिविटी ओवर विच द कोर्ट कैन एक्सटेंड इट्स लीगल अथॉरिटी इज कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट. दैट मीन्स सिंपल भाषा में जजमेंट ऑफ द कोर्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन? पहले मैं है ना यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर आपके टेक्स्ट बुक का पढ़ के समझाऊंगा. ओरिजिनल jurisdiction क्या है? The power held by the Supreme Court to hear a matter brought to it directly without first taking the matter into any other lower court is called the original jurisdiction of the Supreme Court. ठीक है, सीधा किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ही केस डाल दिया और फिर वो लोग सुन के अपना डिसीजन ले लेते हैं, तो उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं. ठीक है, in other words, the matter is originally filed in Supreme Court and hence it is the name. Moving ahead, second is appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction क्या होता है? लोअर कोर्ट में से किसी ने अपील की हो to go in the Supreme Court और फिर जाके अगर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती है उसको बोलते हैं appellate jurisdiction. In English अगर मैं बताऊं, the power of Supreme Court to hear the matter in which a decision is already been passed by a lower court, but an appeal has been made to the Supreme Court to rule out or revise the decision
then it is known as appellate jurisdiction of the Supreme Court. And last but not the least, third, advisory jurisdiction. Advisory मतलब देखो advice देना. When a lower court or a constitutional body seek advice from the Supreme Court in a matter of law and Supreme Court advice, then it is called jurisdiction, advisory jurisdiction of the Supreme Court. तो आप लोगों को ये पता चल गया तीन पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास. एक ओरिजिनल पूरी मैटर पहला ही केस सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, और वो लोग अगर डिसीजन देते हैं, जजमेंट देते हैं, तो उसको ओरिजिनल बोलते हैं. देन अपीलेट, अगर लोअर कोर्ट से किसी ने अपील की है चेंज करने के लिए डिसीजन लोअर कोर्ट का, लोअर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, कहीं से भी, और अगर उसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास आता है और सुप्रीम कोर्ट अगर उसका डिसीजन फाइनल करता है तो उसको बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन. एंड एडवाइजरी, जहाँ पे लोअर कोर्ट को पता नहीं चल रहा है कि अब इसको कैसी सजा दी जाए, ठीक है, तो वहां पे अगर एडवाइस करके जजमेंट दिया जाए तो उसको बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. The Supreme Court of India possesses more powers and has a vast jurisdiction in comparison to any other country of the world. This jurisdiction can be divided into original jurisdiction, appellate jurisdiction, and advisory jurisdiction. Now, let us begin with original jurisdiction. When a court has the power to directly give judgment after hearing a case, such a power is known as original jurisdiction, and the Supreme Court has the power to make decisions regarding the case which no other court has. Under this jurisdiction, the following parties should be involved whose conflicts are resolved by Supreme Court. तो अब क्या क्या केस डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के? तो सबसे पहले इट हैज द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड एनी अदर वन और मोर स्टेट्स, ठीक है. फिर सेकंड क्या है? इट हैज द पावर ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन अदर साइड एंड और मोर देन अदर स्टेट्स. मतलब इसके पास और भी पावर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर एक से ज्यादा कोर्ट्स स्टेट्स एक साथ हो तो वो भी डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम किसका है? Supreme Court का. And it has the complete power to give judgment regarding the fights or quarrels between state and states. State and states मतलब एक स्टेट, जैसे कि गुजरात एक स्टेट है और मध्य प्रदेश और राजस्थान दो अलग स्टेट्स है, तो स्टेट एंड स्टेट्स, बराबर है. Then the Supreme Court has the right to give judgment concerning any set of union government or constitutionality. इसका मतलब to hear the cases इसका मतलब होता है to hear the case related to the central government and the matters related to the constitutionality. Constitution में अगर कुछ गवर्नमेंट प्रॉब्लम करती है तो सुप्रीम कोर्ट वो भी सुन सकती है. लास्ट, it has the power to protect and preserve the fundamental rights of the citizen. Moreover, it is empowered to issue habeas corpus right or mandamus or order of prohibition. ठीक है, तो इसके पास ये भी पावर है. ओके बच्चों, अब ये वर्ड habeas corpus क्या है? तो सबसे पहले habeas corpus मीनिंग we a court command that you have a body, ठीक है, is a resource in law through which a person can report unlawful detention or imprisonment to the court and request that court order to the custodian of that person, usually a prison official, to bring the prisoner to the court to determine whether the detention is lawful. ठीक है, किसी ने उसको सीधा बोल दिया कि तू जेल चला जा, ठीक है, तो हेबस कॉर्पस क्या है? वो डिमांड करता है, ठीक है, कि वो इंसान को कोर्ट में लेके आओ और फिर प्रूव किया जा सकता है कि वो सच में है कि नहीं है.
It is not the jurisdiction of the Supreme Court to settle disputes related to the distribution of river water. तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि रिवर वाटर्स के जजमेंट का काम दे बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, गुजरात महाराष्ट्र, स्टेट्स एंड स्टेट, गुजरात महाराष्ट्र एंड राजस्थान, स्टेट्स, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ऐसा स्टेट्स एंड स्टेट्स, गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे स्टेट एंड स्टेट्स, states and state and states, and states and states. A separate water tribunal gives judgment. The judgment of the Supreme Court is final and it cannot be challenged anywhere. ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, उसके बाद आप लोग और कोई कोर्ट में दरवाजा नहीं खटखटाते हैं। They have to be respected by all, और ये सब को एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। Moving ahead, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन के भी वापस तीन हिस्से हैं। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, 3 टाइप्स ऑफ अपील्स कैन बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर द अपीलेट जुरिस्डिक्शन। फर्स्ट, केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अलग लिखा है और सजा कुछ अलग मिल जाती है तब। देन सेकंड, अपील अगेंस्ट द सिविल केसेस, एंड अपील अगेंस्ट थर्ड इज अपील अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस। Now first, cases of constitutional interpretation, ठीक है। So any person can approach a Supreme Court against the judgment, order or writ given by the High Court or any case only if a certificate is issued by High Court along with the judgment that the case involves any matter pertaining to the Constitution which has been falsely interpreted or contains any important questions of law, and hence the petitioner can appeal in Supreme Court for the same. तो सुप्रीम कोर्ट को आप तभी अप्रोच कर सकते हो जब एक रिटन डॉक्यूमेंट में हाई कोर्ट द्वारा केस में सर्टिफिकेट में लिखा हो कि ये केस में अब हम लोगों से ज्यादा, मतलब ऐसा लिखा हो कि ये या तो फॉल्सली इंटरप्रिटेड है या कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में अब हमको ज्यादा पता नहीं चलता है, तब जाके जो पिटिशनर है, पिटिशनर का मतलब जो भी बंदा सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है वो बंदे को पिटिशनर बोलते हैं, कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेम। If any such case certificate is not given by High Court and if petitioner approaches the Supreme Court, then in such circumstances, if Supreme Court finds any constitutional right is violated, then it can accept the petitioner's appeal. और बाई चांस अगर हाई कोर्ट ने लिख के नहीं दिया है लेकिन फिर भी वो पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बराबर है, और वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है वो वायोलेट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो वायोलेट किया गया है, देन इट्स सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि हाँ ये केस को हम लोग सुनेंगे, ठीक है, वैसा। But in any other circumstances, only the petitioner who is the party of working of High Court can approach the Supreme Court only under the reasons that the false judgment is issued by the High Court or any other court. और false judgment होगा then and then Supreme Court में जा सकते हैं या ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। Next, second, civil cases. In case of civil cases, if High Court certifies that the case involves the important questions of interpretation of law and that the case holds general importance and it is necessary that Supreme Court decides, then an appeal can be made in Supreme Court, ठीक है। तो अब सिविल केसेस में अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि केस इन्वॉल्व्स इंपॉर्टेंट मैटर, ये खास ध्यान रखना, रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, दैट केस इज इंपॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का नेसेसरी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तब जाके वो सिविल केस को भी एक्सेप्ट करेगा। जजमेंट ऑफ एनी सिविल केस इन्वॉल्विंग अ सम ऑफ रुपीज मोर देन 1 lakh और मोर कैन बी चैलेंज्ड इन अ सुप्रीम कोर्ट। और अगर पैसे का मामला है और अगर 1 लाख से ऊपर का ही, अगर 1 लाख से ऊपर की केस है, then that case can be accepted in सुप्रीम कोर्ट, ओके। नेक्स्ट, थर्ड, क्रिमिनल केसेस, ठीक है। क्रिमिनल केसेस, खून, मर्डर, रेप वगैरह।
So, in case of criminal cases, if any lower court has acquitted the criminal from a capital punishment, and in that case, High Court has given a capital punishment to the criminal, then in such circumstances, an appeal can be made in Supreme Court. मतलब अगर हाई कोर्ट ने फांसी दे दी और अगर इतनी बड़ी सजा नहीं है, ठीक है, और सिर्फ ऐसा हो कि हैंग टिल डेथ, सॉरी, हैंग टिल डेथ नहीं, अंदर प्रिजन टिल डेथ, या तो ऐसी कैपिटल पनिशमेंट दे दी, तो वो कैपिटल पनिशमेंट को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है अपने ओन जजमेंट्स। It can transfer the cases that are going on in other case to the Supreme Court. The Parliament can increase the powers of Supreme Court by framing an act. As you all know, law कैसे बनते हैं। And last, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एडवाइजरी जुडिक्शन। आप सबको पता है एडवाइस देना सुप्रीम कोर्ट का, अगर किसी कोर्ट को पता नहीं चल रहा है और अगर जो अपने सुप्रीम कोर्ट वाले उनको एडवाइस करे तो ऐसे जजमेंट को एडवाइजरी जजमेंट बोलते हैं। If the president feels that any particular matter or question holds importance from the point of view of public welfare, then the president can take a counsel of Supreme Court by sending the matter or question to the Supreme Court for consideration. इसमें प्रेसिडेंट का रोल भी ज्यादा है। Under this provision, the President can avail counsel from the Supreme Court in the questions pertaining to the law, reality, and constitutional interpretation of relevancy of any bill. But if Supreme Court finds it unnecessary to consider or give opinion on the sent matter, it can send it back to the President. और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ देखने जैसा नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है, तो वो वापस ये केस को प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। एंड इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू फॉलो द एडवाइस और काउंसिल गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। और प्रेसिडेंट का भी इतने पावर्स है कि सुप्रीम कोर्ट अगर बोले तो वो प्रेसिडेंट को फॉलो करना ही है, ऐसी भी कोई जरूरी बात नहीं है। एंड द लास्ट टॉपिक, अदर पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है, और वो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जिसको बोल सकते हैं, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें, मतलब कोर्ट में ही अगर आप लोग मिसबिहेव करते हो तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और डिसीजन, अपने ही डिसीजन को वो रिव्यू कर सकता है, चेंज कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। Supreme Court has the power to nullify any steps law taken by executive if it violates the constitution. कुछ ऐसे लॉ बन गए जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रोटेक्ट ना कर सके, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ऐसे लॉज को फ्रेम ही ना होने दे। दिस राइट हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Supreme Court is thus the guardian and savior of constitution and citizen. So ये सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा है जो अपने ऐसे फादर जैसा लगता है। इज द गार्डियन एंड सेवियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल द इंडियन सिटीजन्स। सो दैट्स इट फॉर द डे बच्चों। हमारा पहला सेशन इंडियन जुडिशियरी का यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग हाई कोर्ट देखेंगे, हाई कोर्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड देन ऑन द थर्ड डे वी विल एंड योर दिस चैप्टर। ओके बच्चों, सो दैट्स इट। If you have gone through this entire video, please do like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel. Please press the bell icon so that you cannot miss any of my videos. Thank you very much बच्चों, bye bye।